Assalamu alaikum students, welcome to the ICRA Civil Services Corner. We are going to start opinion analysis published in the Express Tribune newspaper. 30th July 2025, we are going to start Embers of Denial is the topic in which we will discuss how climate change is affecting the Europe. Yesterday, we have covered the article related to climate change, the crisis of governance we have discussed yesterday. And also I have mentioned the article that I have published in the platform Medium. And I appreciate to the students who read that article because I have see the stats because there were so many students who read that article. The students who are listening today, you can also read that article. It is all related to the climate change and its vulnerabilities related to the four provinces of Pakistan, and you can read that too. So why have I choose this article for today, this opinion for today? Because the reason is simple. Yesterday we have discussed the crisis of governance in the climate-related incidents, particularly related to Pakistan. And my article is also related to Pakistan. But right now, when you at the stats, at the case studies related to climate change, you have to look around the globe. So today we are going to discuss the climate related disasters and the related incidents related to Europe. So this is the crux of this opinion I have attached here, and you can see there is a record-breaking heat wave in Europe as well as the countries that are in the Europe. और उसमें कितनी लाइव्स लॉस हुई हैं? देयर आर अप्रोक्सीमेटली 2300 लाइफ लॉस्ट इन दी इन ऑल अबाउट जो कॉन्टिनेंट है यूरोप में. व्हाट आर द कोर काजेस? हमारे पास ग्लोबल इमिशंस हैं, ठीक है. ग्लोबल इमिशंस हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उनकी जो प्रॉपर इमिशंस हैं, तो उसका मैंने आगे स्टार्ट्स में भी एक प्रॉपर समरी की फॉर्म में टेबल मेंशन किया है. और इसके अलावा देयर आर सम अर्जेंट रिकमेंडेशंस जो कि इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज the opinion that I have attached the screenshots just to get you people get an idea what this opinion is all about और हम कौन सा opinion discuss कर रहे हैं. Europe is ablaze and not just with heat. This summer Europe endured a heat wave of unprecedented ferocity. Ferocity होता है turbulent, ठीक है, brutal हीट वेव इस जो है इस ईयर में यूरोप ने फेस की है. फ्रॉम लेट जून इनटू अर्ली जुलाई, cities across the continent were gripped by temperatures soaring east past 40 डिग्रीज सेल्सियस. यानी कि जितने भी अक्रॉस ये जून के एंड से लेके जुलाई के बीच में countries have experienced the temperature approximately related to 40 डिग्री सेल्सियस. और अगर हम पुर्तगाल की बात करते हैं तो वहां पे 46.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है. इन पोर्तुगल जून रिकॉर्ड shattered as the mercury climbed to 46.6 degrees. Spain, Italy, France, Germany and the UK all recorded record-breaking heat, triggering health alerts, school closures and even temporary shutdowns of nuclear reactors in Switzerland. We have discussed 5 countries: स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके. एंड इसमें सारे क्या हो रहे हैं? 46.6 डिग्री सिर्फ पुर्तगाल में हमने देखा कि एक हीट जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है. इसके साथ साथ इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? देयर आर स्कूल क्लोजर्स एंड टेम्परेरी शटडाउन्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन स्विट्जरलैंड. सो नेक्स्ट इज द ह्यूमन कॉस्ट हैज बीन हार्ट रेंडरिंग. ह्यूमन कॉस्ट देखिए इसकी कितनी है. तो ह्यूमन कॉस्ट इज 2300 lives were lost across 12 major European cities. 12 major European cities में how many people are died? 2300, and with approximately 1500 of those fatalities directly attributable to climate change's intensification of the heat wave. और इसमें से 1500 lives heat wave की वजह से थी. Portugal alone reportedly nearly 300 excess deaths in June. Only June में पुर्तगाल में कितनी डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं? देयर आर 300 डेथ्स एंड दीज आर नॉट डिस्टेंस ट्रेजेडीज. they are our collective failure to heed warnings. ऑलराइट. सो अगर अब हमने बात कर ली हीट वेव से रिलेटेड डेथ्स की, हमने बात कर ली इसके आफ्टर इफेक्ट्स की, अब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट के जो रिलेटेड इंसिडेंट है वो इकोलॉजिकल उसके इफेक्ट्स क्या है. जब आप इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना तो डेफिनेटली यू टॉक अबाउट वाइल्ड फायर्स और ईडीएस में प्रॉपर एक टॉपिक आता है वाइल्ड फायर का. तो यहाँ पे यू हैव द बेटर स्टैट्स जो कि आपको मियां शफीक की बुक में, इसके अलावा देयर आर अदर बुक्स जिसमें मेंशन नहीं किया जाता बिकॉज वो ईयर टू ईयर जो है वो जो बुक्स है वो पब्लिश अगेन एंड अगेन होती रहती है. सो
Severe wildfires swept across Europe, affecting Spain, Greece, Turkey, France, and UK. Again, 5 countries. In Spain, a fire near Madrid burned 3,000 हेक्टर्स. हेक्टर्स होते हैं मतलब ये एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, मुरब्बा इसको उर्दू में कहते हैं वैसे. एंड फोर्स्ड इवैक्यूएशंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट्स. क्रेट saw over 1,500 people displaced by fires while blazes in Izmir. Izmir is a city of Turkey. Led to casualties and uprooted more than 50,000. ठीक है. यूके ने क्या एक्सपीरियंस किया है? यूके एक्सपीरियंस इट्स वर्स्ट वाइल्ड फायर सीजन ऑन रिकॉर्ड. Overall, nearly 6 million hectares have burned this season. So these are the fresh stats, students, you can use in the topic related to wildfires and the climate related incidents related to the ecological disasters जो क्लाइमेट की वजह से हो रहे हैं, हीट वेव की वजह से हो रहे हैं. ऊपर हमने डेथ्स भी रिकॉर्ड्स की, ऊपर हमने ये सारी चीजें देखी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू कवर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये मैं स्क्रीनशॉट इसलिए अटैच करती हूँ सो यू पीपल गेट एन आइडिया कि कौन सा ओपिनियन हम रीड कर रहे हैं. Record-breaking heat wave in Europe, summer 2025. Extreme heat wave swept Europe यानी कि ले गई, यानी कि बहुत ज्यादा एक brutal effects है. Portugal recorded 46.6 degrees centigrade. Other countries like Spain, France, Germany, UK has forced record temperatures 40 degrees से related अभी हमने पढ़ा. Caused school closures, health emergencies and shutdowns of Swiss nuclear reactors. ये shut down करने पड़े, यानी कि सर्विसेज बंद करनी पड़ी. इन्होंने अपनी जो भी एक्टिविटीज थी वो क्लोज की. ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल कॉस्ट अब हम रीड करने लगे हैं, जो कि अभी हमने रीड किया है, ठीक है. सो 2300 लाइफ लॉस्ट इन 10 days अक्रॉस 12 cities ऑफ यूरोप. अभी हमने पढ़ा पुर्तगाल में सिर्फ जून में 300 डेथ्स रिकॉर्ड हुई. एल्डरली मोस्ट अफेक्टेड है. वाई? बिकॉज जितना आप एज बढ़ती जाती है इम्यून सिस्टम लो होता है, और जितनी जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं आपके इर्द गिर्द मौसम की, एनवायरमेंट की, तो वो आपसे उसके अंदर आपको सस्टेन करना उतना डिफिकल्ट होता जाता है. Fires destroyed nearly 6 million hectares in UK. We have discussed. ठीक है. Portugal, अच्छा, Madrid fire 3,000 hectares, create 1,500 plus displaced. Izmir, Turkey, यानी कि city of Turkey, 50,000 plus uprooted. And UK worst wildfire season on record. Make a slide, make a table जिसमें आप यहाँ पे पाकिस्तान का और बाकी जो एक यूरोप का कंपैरिजन अपने पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो कोर कॉजेस क्या है? यूरोप इज वार्मिंग एट ट्वाइस रेट ग्लोबल रेट. अच्छा, यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यूरोप जो है ना ट्वाइस रेट पे जा रहा है. ग्लोबल जो टेम्परेचर है यहाँ पे इसका 1% की स्पीड से नहीं बढ़ रहा, बल्कि इट इज इंक्रीजिंग ट्वाइस. तो रीजन इसके पीछे क्या है? बिकॉज दे डिनाई क्लाइमेट चेंज. उनकी जो पॉलिसीज हैं वो डिनाई करती हैं क्लाइमेट चेंज को. दे आर द बिगेस्ट एमिटर्स, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं. कोल की जो प्रोडक्शन है और कोल का जो यूजेज है, फॉसल फ्यूल का जो यूजेज है, वो नॉर्थ में ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ. एंड साउथ इज पेइंग द प्राइस ऑफ दैट एक्टिविटीज. आपको पता है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ था तो वो वहाँ साउथ में जब नॉर्थ में स्टार्ट हुआ था, तो उसके जो इमिशंस हैं, उनके जो सारी द प्राइसेस एंड द रिजल्ट, वी एज अ साउथ एशियन कंट्रीज वी आर पेइंग दैट. तो क्लाइमेट चेंज इज द न्यू नॉर्मल. मैंने मॉनसून में हम न्यू नॉर्मल पे आर्टिकल लिखा है, मैं लिंक इसमें अटैच कर दूंगी, आप उसको रीड कर सकते हैं. वो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए. मैंने बेसिकली वो लिखा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर को पब्लिश कराने के लिए, लेकिन उनके कुछ टेंट्रम्स बहुत ज्यादा हैं, तो उन्होंने मुझे खैर उसमें कहा कि एनीवे अर्जेंट रिकमेंडेशंस, एक्सपैंड हीट हेल्थ प्लान्स. तो हमें रिकमेंडेशन वो प्रोवाइड करते हैं, कूलिंग शेल्टर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. इसके अलावा दे आर सजेस्टिंग दैट वी हैव टू ट्रेन द हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस टीम फॉर हीट वेव प्रोटोकॉल्स एज वेल एज पब्लिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हीट स्ट्रोक से और प्रिवेंटिंग जो मैयर है वो किए जा सके. इसके अलावा इकोलॉजिकल लेवल पे वी हैव टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फायर प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल बर्न्स, फायर ब्रेक्स एंड लैंड एजुकेशन. इसके अलावा यूज ऑफ सैटेलाइट्स, ड्रोन्स एंड सेंसर फॉर अर्ली डिटेक्शन, ताकि हम GIS और RS का रिमोट सेंसिस का यूज करके हम अर्ली डिटेक्ट कर सके. अर्ली वार्निंग सिस्टम, कल हमने देखा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट में वार्निंग सिस्टम इज द टॉप प्रायोरिटी होती है.
लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इवैक्यूएटिंग प्लानिंग, ठीक है। और लोकल जो कम्युनिटी है उसके पास, पाकिस्तान के पास तो हमने रीड किया ना कि पाकिस्तान के पास ये वाइल्ड फायर से फाइट करने के लिए सिर्फ लाठियां होती हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्लेन्ड हियर। लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इवैक्यूएटिंग प्लानिंग में उनको भी एजुकेशन की जरूरत है। अर्बन रीडिजाइन किया जा सके, ग्रीन कॉरिडोर, शेड ट्रीज, रिफ्लेक्टिव जो मेजर्स हैं, सिविक डिजाइन, क्लाइमेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ग्रीन जो रूफ होती है ना, इकोलॉजिकल जो रूफ होती है, ग्रीन रूफ, वो उसको प्रमोट किया जाए। पॉलिसी एंड गवर्नेंस में रिकमेंडेशन वो इस वक्त सजेस्ट करता है इसमें कि री एनफोर्स क्लाइमेट चेंज एज ए मॉरल ड्यूटी, एलिमिनेट करें फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को, एक्सेलरेट करें रीन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर को। अच्छा, यहाँ पे जब मैं ये आर्टिकल रीड कर रही थी तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च की कि क्या ये जो 5 कंट्रीज हमने डिस्कस किए हैं, इनका ग्रीन हाउस गैसेस में, ग्लोबल एमिशंस में इनका रेट कितना है, इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, एंड व्हाई दीज कंट्रीज आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। स्पेन में है हमारे पास 0.64 शेयर ऑफ ग्लोबल एमिशंस, पर कैपिटा भी मेंशन है। लेटेस्ट एनुअल एमिशंस हैं 2022, 23, 24 के स्टार्ट्स हैं, ठीक है। आपने इसमें ऐड करना है शेयर ऑफ ग्लोबल एमिशंस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप इनकी ये देख लें लेटेस्ट एनुअल एमिशन इनकी कितनी है, 2-3 कंट्रीज की याद कर लें, पेपर में ऐड कर दीजिएगा, आपको मोर पॉइंट्स, यू विल गेट मोर पॉइंट्स। फ्रांस की 0.75 है, यूके की 1% है, देखें पाकिस्तान की कितनी है, लेस देन 1%, लेस देन 0.50 से भी 1% से भी परसेंट से भी कम है। टर्की की देखें 1.3%, ग्रीस की 0.15%। So here is the explanation of these the 5 contributors in the global emissions. Collectively, these 5 nations contribute approximately 3.8% of global GHG gases, यानी कि greenhouse gases. Turkey leads among them in top level क्योंकि उसके per capita level सबसे ज्यादा है। यूके और फ्रांस में एक there is a steady decline because उन्होंने अपनी policies को change किया है, ठीक है। सो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन है इस स्लाइड्स की। और लास्ट स्लाइड, हाउ यू कैन यूज दिस ऑल स्टैट्स इन योर पेपर्स, तो आप इसको यूज कैसे करेंगे। करंट अफेयर के पेपर में कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक आएगा, वहां पे ऐड करेंगे। एनवायरमेंटल साइंस और ज्योग्राफी के पेपर में तो ऐड करेंगे। इसके अलावा जो वाइल्ड फायर है ना, उसका एक कंप्लीट टॉपिक है ईडीएस में, एवरीडे साइंस में, वहां पे इट इज वेरी रेलेवेंट। इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे यूज कर सकते हैं, इट हाईलाइट्स यूरोप्स ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी एंड लीडरशिप पोटेंशियल इन क्लाइमेट रिफॉर्म। वाई लीडरशिप पोटेंशियल, बिकॉज हमारे पास यूएस है, ईयू है, ये दीज आर द लीडर्स। और इसके अलावा इमर्जिंग लीडर्स भी हैं, वी हैव डिस्कस्ड हमने प्रीवियस ओपिनियंस में। तो इस वक्त दीज आर द लीडर्स, तो इस लिहाज से इनकी कुछ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी गैप्स, डिजास्टर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स एंड लोकल इंक्लूजन प्लानिंग, you can add these points. So that's all for today. You can share this channel to those students who are preparing for the services, civil services exams. Allah Hafiz.